Sakura wa Nihon no hana desu. Nihon no utsukushi shushin o tanushin de kudasai. I know you must be wondering what all I have said. I told you about Sakura, that is cherry blossom. It is the national flower of Japan. Through this song and dance, the students of AIS are telling the whole world to come together and enjoy the beauty of nature. Success is not just a destination. It is the sum total of all the hardships, inspiration, and learning attained in course of achieving it. Success is the good fortune that comes from aspiration, desperation, perspiration, and inspiration. So, we would like to request our guest of honor, Mr. Rajendra Tiwari, to come forward and honor the achievers.
applause for him, audience. In the Japanese language proficiency test organized by the Embassy of Japan, M. Somnath of class 12A cleared level N4. Give him a huge round of applause. Chandani Dhawan of class 10C and Anisha Saxena of class 11B cleared level N5. They all are being awarded with certificates. Dear parents, please clap for them. In the zonal English debate competition, M. Somnath and Pancham Gupta bagged the first position in the senior boys category. Kindly applaud them, parents. In the Sanskrit poetry competition, Siddharth Agarwal of class 6C, Manu Rai of class 7A, Karishma Tamane of 11B and Abhinav Alo of class 10A bagged the first position. Ladies and gentlemen, please put your hands together for them. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. In the netball competition, Ananya Sharma, Aryan Tiwari and Deepal Yadav achieved the second place at the national level. They received a trophy, a medal and a cash prize of rupees 15,000 each. Give them a huge round of applause, audience. Arvachinians, namely Harshit Varma, Tanya, Bhavya, Ifra, Shraddha, Aditi and Kaushiki participated in the National Chalk Ball Competition held at Goa from 18 to 21st November 2015. In the zonal sports competitions, the students of AIS have secured 23 positions. 6 positions in netball. M. Somnath and Simran Kashyap are requested to come forward and collect the certificates on behalf of the team. Two positions in Kho-Kho, captains Akshat Arya and Akshay Shairawat, please come forward and collect the certificates on behalf of the team. Dear parents, we need your blessings and applause. Three positions in basketball, we request Ananya Sharma and Aryan Tiwari to collect the prize on behalf of the team. Kindly cheer them up, parents. Five positions in throwball. I request Puneet Sharma, Gagan Vashne and Dhruv Nagpal to come on the stage and collect the certificates on behalf of the team. In table tennis, Prashant Chaudhary and Tanya Gupta are requested to come forward and collect the certificates. Let's all cheer them up with a huge round of applause. One position in badminton, I request Soumya Singh
Singh to come forward and collect the certificate. Next in line is the inter-zonal competition in which the students of our school grabbed 3 positions in the netball championship, 1 in the girls category and 2 in the boys category. They have won trophies. I request Shraddha, Kaushiki and M. Somnath to come forth and collect the certificates on behalf of the team. Please put your hands together for them. A trail of medals has been won by the following Albertinians in athletics. Drishti Katyal, class 7D, bronze medal 100-meter race. Nandini Grover, class 8B, silver medal in the 200-meter race. Aryan Tiwari, class 8C, silver medal in high jump. Aryan Tiwari, class 8C, bronze medal in the 400-meter race. Lavish, class 7D, silver medal in high jump. Nikhil Mishra, class 9C, bagged 2 silver medals in the long jump and high jump. Drishti Katyal, Dhruvi, Nandini Grover and Ananya Gonial bagged the gold medal in the relay 4 into 100-meter race. Ashish Pandey, Nikhil Mishra, Arunesh and Sahil Dixit bagged a bronze medal in the relay 4 into 100-meter race. Nikhil Mishra and Drishti Katyal are requested to kindly come forward and collect the medals on behalf of all the achievers. Heartiest congratulations to all the achievers. Thank you, sir. Kaushiki, do you remember the tales of the Arabian Nights? Yes, of course, Aditi. The characters, the stories, the setting, everything was endlessly fascinating. The next song will take you to the land to which these stories belong. It will take you to the land of deserts, to Arab. So, ladies and gentlemen, brace yourself for a journey to Arab. I request you all to welcome them with a huge round of applause.
request our honorable guest of honor, Mr. Rajendra Tiwari, to kindly come forward and say a few words. नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि माननीय शर्मा जी, संस्थान के डायरेक्टर माननीय अरुण शर्मा जी, हमारी पहले की प्रिंसिपल स्वरूप मैडम और वर्तमान प्रिंसिपल मिसेज पीटर मैडम और सभी सम्माननीय विशिष्टगण उपस्थित सम्माननीय व्यक्तियों, सभी अभिभावकों और छात्रों, सबको नमस्कार करते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज शर्मा जी ने हमें इस मौके पे इस एनुअल फंक्शन में शामिल होने का अवसर प्रदान किया, इसलिए इनका दिल से धन्यवाद। और कुछ बोलने के लिए शर्मा जी के सारगर्भित स्पीच की बात कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं मेरे लिए, और बाद में बोलने वाले का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि सब कुछ तो बड़े भाई बोल जाते हैं और हमें खड़े होकर नमस्कार करके चले जाना होता है, लेकिन रिवाज है, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। मैंने आने से पहले जरा देखा यहाँ पे तो 2003 में शायद ये विद्यालय आपका शुरू हुआ था, और 2015 तकरीबन 12-13 साल में जिस लेवल पे पहुंचा है तो उसका श्रेय आपको जाता है, निदेशक साहब, पहले की प्रिंसिपल मैडम को जाता है और वर्तमान प्रिंसिपल मैडम को जाता है, और साथ ही साथ हमारे जितने पेरेंट्स हैं यहाँ पे और जितने छात्र हैं उनको भी जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस विद्यालय का नाम अर्वाचीन क्यों हुआ, और मुझे भी नहीं मतलब मालूम था कि इसका अर्वाचीन का मतलब क्या होता है। आते हुए मैंने अपने पिताजी से पूछा कि मैं जा रहा हूँ अर्वाचीन विद्यालय में, मुझे शायद कुछ बोलना पड़ जाए, कम से कम इतना तो बता दीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। और हो सकता है कि हमारे छात्र, हमारे निदेशक जानते होंगे इसका मतलब, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने मुझे बताया कि जो अपने आप को अपडेट रखे, जो हमेशा अपने आप को अपडेट रखता जाए, वो अर्वाचीन कहलाता है। और वो आगे यहाँ पे दिखा हमें, जिस हिसाब से विद्यार्थियों ने अपना प्रदर्शन किया हुआ है और अपने को अपडेट रखा है, तकनीक के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, बदलते हुए परिवेश के साथ अपडेट रखा हुआ है, वो वास्तव में बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ सोच के आया था, कुछ कोटेशन सोच के आया था, बहुत सारी बातें सोच के आया था, लेकिन जब एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे आपके बच्चे तो बीच बीच में कोटेशन बोल रहे थे। जो भी सोचा था सब कुछ बोल गए हैं, इसलिए भी और कुछ नहीं बचा। तो पुराने ठर्रे पे ही शुरू करता हूँ मैं। जैसे हमें पढ़ाया गया था कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथयो च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंक्ष लक्षणम। काक चेष्टा मतलब कौवे की तरह चेष्टा हो। एक पुरानी कहानी है कि कौवे को पानी बहुत कम दिखता है घड़े में, तो बार बार कंकड़ डालता है, उससे ऊपर लाता है। लेकिन चूंकि अर्वाचीन है और आज के इनोवेशन के साथ इनको अपडेट भी रखना है, तो आजकल के बच्चे हमारे कौवे की चेष्टा तो लेते हैं, लेकिन कौवा वो वाला नहीं है। कौवा ये वाला है कि देखता है पानी नीचे है तो दूर कहीं जाता है और एक स्ट्रा देखता है, वो कोका कोला पीने वाला, और उसको लेके आता है, अपनी चोंच पे फंसा करके पानी खींच लेता है। तो वो वाली तो चेष्टा है आप लोगों की। और बको काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान लगाना है। वो पानी में बैठा है, मछली सामने दिखती है, एकदम ध्यान लगा करके उसको शिकार करना है। तो आज इसका मतलब ये हुआ कि आपको कंसंट्रेट रखना है अपनी फील्ड में, अपने क्षेत्र में अपने आप को कंसंट्रेट रखना है। स्वान निद्रा, स्वान निद्रा इसका मतलब ये नहीं कि आप सो और जाग जाओ, सो और जाग जाओ, लेकिन आप आसानी से सो और समय से जाग जाओ। अल्पाहारी, कम खाना है, बिल्कुल कम नहीं खाना है, क्योंकि फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है, और अगर फिटनेस नहीं होगी तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आप खाओ। फिटनेस, मुझे लगता है कि शायद विद्यालय में फिटनेस को भी बहुत महत्व दिया जाता होगा, उसमें एक योग भी शामिल है, प्राणायाम भी शामिल है, वो सबको भी करते रहिए। और गृह त्यागी, गृह त्यागी पे मुझे पहले थोड़ा सा आपत्ति होती थी, लेकिन बाद में मुझे बताया गया कि गृह त्यागी का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ दो और कहीं बाहर जाके पढ़ो। पुराने जमाने में आश्रम हुआ करते थे जहाँ पे विद्यार्थी जाके पढ़ते थे, वो गृह त्यागी होता था। आजकल के जमाने में कुछ हॉस्टल होते हैं, लेकिन आप सबके लिए जो ज्यादातर हॉस्टल में नहीं रहते हैं, उनके लिए गृह त्यागी का मतलब हुआ कि घर के फालतू वाले झमेलों से अपने को दूर रखना। घर में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, पड़ोस में किससे लड़ाई हो रही है, इन सब से दूर रखना और अपने काम में लगे रहना। वही कबीर जी ने जैसे कहा था कि करत करत अभ्यास थे जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। शायद शहर के बच्चे नहीं जानते होंगे कि ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया होगा। पहले गांव में अभी भी शायद कुआं होता है, कुएं के किनारे कंक्रीट के, सीमेंट के चबूतरे बने होते हैं। जब पानी निकालते हैं तो रस्सी से
वो खिंच जाता है धीरे धीरे। मतलब आपके लिए संभव कुछ भी नहीं है, आप निश्चित रूप से अभ्यास करते रहिए, हासिल कर लेंगे। लेकिन उस अभ्यास के साथ जो शिक्षकों का प्रोत्साहन है वो भी बहुत जरूरी है। आप अकेले क्या करते रहेंगे, आपको शिक्षक भी ऐसा मिलना चाहिए। वो भी कबीर जी ने बता दिया शिक्षक कैसे मिलना चाहिए कि गुर कुम्हार शिष्य कुंभ है, यही बोला था कबीर ने। गुर कुम्हार शिष्य कुंभ है, गही गए गाहे गही गही काढ़े खोट, अंतर हाथ सवार दे बाहर बाहे चोट। गुरु जो होता है वो कुम्हार की तरह होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के घड़े बनाते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो उसी मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं। गुरु पहले तो पीटते भी थे, गुरु मारते थे, हम लोग के जमाने में बहुत मारे जाते थे। आजकल तो ऐसा हो गया, क्राइम हो गया, आप किसी पे डंडा उठा दीजिए, हाथ उठा दीजिए, वो जाके FIR करवा देगा। हमारे साहब बैठे हुए हैं, वो बताएंगे क्या क्या होता है इस बारे में। लेकिन इसका मतलब नहीं, इसका मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में लीजिए कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो जरूर होना चाहिए, लेकिन कैसा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, अंतर हाथ सवार दे। जैसे खड़ा है, यहाँ से अगर उसका ढांचा थोड़ा सा गड़बड़ है तो उस जगह पे पहले अंदर हाथ लगाओ उसका, और बाहर बाहे चोट, बाहर से थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाओ तो बच्चा आगे बढ़ेगा। और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चा तो 7-8 घंटे स्कूल में रहता है, बाकी आपके साथ रहता है। घर की जो एथिकल वैल्यूज हैं, जो नैतिक शिक्षा है, हमारे ज़माने में नैतिक शिक्षा की एक विषय भी होता था, पता नहीं आजकल होता है कि नहीं होता है, मैं नहीं जानता। लेकिन नैतिक शिक्षा भी बहुत जरूरी है, स्कूल से भी दिया जाना बहुत जरूरी है, और घर में भी मिलना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या है कि जो संस्कार हम खुद रखेंगे, माँ बाप रखेंगे, वही संस्कार बच्चों में जाएंगे। जाने अनजाने हम खुद तो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बच्चे ले जाते हैं, और बच्चों पे डांटते हैं, तुमने सीखा नहीं, तुमने ये आदतें कहाँ सीखी, पता चला वो घर पे ही सीख के आ रहा है। इसलिए आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए। और बच्चों के लिए मेरा कहना है कि बड़ा अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि फर्स्ट पोजीशन किसी ने सिक्योर किया, सेकंड पोजीशन किसी ने लिया, तो उसके बाद वाले बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ 95%, 98%, 99% में नहीं है। जिंदगी हर एक को चांस देती रहती है, बीच बीच में 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस देती रहती है। हमें कंसंट्रेट करना है। एक अटेम्प्ट गया तो गया, कोई बात नहीं है, सेकंड अटेम्प्ट मिलेगा, थर्ड अटेम्प्ट मिलेगा, और हमेशा अच्छे परसेंटेज लाने से ही जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। बहुत सारे एरियाज हैं, ये खुला आसमान आपके सामने है, वो बस जिंदगी एक आपको मौका देगी, उस मौके को ग्रैब करना है। और शायद इससे ज़्यादा मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है, और सोच के तो बहुत कुछ आया था। एक बार फिर से मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से आप सबका, मैनेजमेंट का धन्यवाद देता हूँ कि हमें इतनी अच्छी गैदरिंग के साथ, इतने अच्छे बच्चों के साथ इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने का मौका मिला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद। Thank you so much, sir. Mythological stories have always been a constant source of inspiration. Yes, just like the story of Bhasmasur teaches us that power without self-control leads to one's own destruction. And the story goes like this. Wait, Aditi. Won't you like the audience watch and enjoy the play? Certainly, Kaushiki, I'm so sorry. Audience, let's welcome them on stage with a huge round of applause.
ऐसे उथल पुथल? ओम नमः शिवाय। क्या हो रहा है? हमें तो डिस्को लगा है। शिव जी के भक्त सुर राक्षस के वरदान मांगने का समय आ गया है। अरे इसे उठाते उठाते तो मैं थक गया। अरे चिंगू, ये राक्षस तो जाग ही नहीं रहा है। अरे तो जगाओ इसे, करो इसकी तपस्या भंग, वरना देवताओं को करेगा ये तंग। हाँ, अब मैं ही इसे उठाता हूँ। ये तो बहुत भारी है। ये तुमने क्या किया? तो तुम मेरे पीछे क्यों खड़े थे? अरे ओ झूमते झूले, मेरे प्रभु के चरणों को छूले। ये मेरे भोले का भक्त है ना, तो इसे भक्ति करने दो। नारायण नारायण। मेरे प्रभु नारद मुनि महागुणी, मेरे प्रभु। अरे मेरे प्रिय चिंटू। अरे प्रभु, प्रभु आप तो समझ देवी देवताओं की सहायता करते हैं ना? हाँ मेरे प्रिय चिंगू, करने देवताओं की सहायता मैं इस ब्रह्मांड में आया। अभी अभी इंद्रदेव की सहायता करके आ रहा हूँ। प्रभु तो मेरी भी सहायता कीजिए ना। पर तुम किस संकट में हो? प्रभु समस्या ही समस्या है, समस्या को सुलझाने के लिए, सुर राक्षस को जगाने के लिए चलिए ना। सुर राक्षस को जगाना है? अब बीत गई रात है, अभी इसे जगाता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो चलो चलो। हाँ, सब मिलकर इसे जगाओ, सब ढोल मंजीरे बजाओ। बजाओ बजाओ। भजन नारायण नारायण हरे हरे, भजन नारायण नारायण हरे। अरे अरे रुको रुको। क्या कर रहे हो? हम सब यहाँ पे ना खाना खा रहे हैं, खाओगे? अरे दिखने लेने जगा लिए। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या सुर राक्षस से नहीं डरते हो? अरे वो ये तो मैंने पूछा ही नहीं। अरे चिंगू, हम इन्हें क्यों जगा रहे हैं? प्रभु वो दरअसल। अरे वह क्या बताएगा, मैं ही बता देता हूँ। सुनो, हमारे स्वामी भगवान शिव को खुश करके इंद्रलोक को पाएंगे और अति सुंदर माता पार्वती को अपनी रानी बनाएंगे। जी प्रभु। ये सूचना तो फिर माता पार्वती को अति शीघ्र देनी होगी। मैं फिर चलता हूँ। हम सबको भी चलना चाहिए। चलो चलो चलते हैं, चलो चलो चलो। माते माते पार्वती, कहाँ है आप माते? माते। अरे क्या हुआ नारद, क्यों आए हो इतने घबराते? माते मत पूछे कि क्या हुआ। हुआ ये है कि क्या अपनी घोर निद्रा से वह जागने वाला है? सुर नामक राक्षस वरदान मांगने वाला है। जी माते। तो अब क्या करें नारद? अब हम इस समस्या से केवल एक ही भगवान बचा सकते हैं। कौन? स्वयं भोलेनाथ। मगर वे तो तपस्या में लीन है। और यदि हमने उन्हें अभी जगाया तो कहीं क्रोधित न हो जाए और हमें ही न भस्म कर दे। क्या करें माते? नारद एक काम करो, तुम जाओ। जी माते। अरे उधर नहीं, भोलेनाथ के पास जाओ। मैं अपने प्राणों को संकट में देख घबरा रहा हूँ माते, पर आप चिंता न करें माते, मैं जा रहा हूँ। अरे भोलेनाथ कहाँ गए? भोलेनाथ, आपको कहीं भोलेनाथ दिख रहे हैं? मुझे तो वे बंद आंखों से भी दिखाई देते हैं। माते आंखें खोल कर देखिए, मुझे तो तब भी दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ गए भोलेनाथ? अरे कहीं वो सुर राक्षस को वरदान देने तो नहीं चले गए? माते यदि ऐसा हुआ तो आपका कैलाश प्रशासन और इंद्र का आसन दोनों का ही हो जाएगा कल्याण और संकट में पड़ जाएंगे आपके प्राण। नारायण नारायण। अरे नारद जल्दी चलो, हमें उन्हें रोकना होगा। जी जी माते, शीघ्र चलिए।
प्रभु रुकिए, प्रभु रुकिए, प्रभु। पशुपति, आप ये जो करने जा रहे हैं, क्या जानते हैं इसका अंजाम? नमः शिवाय। परंतु ये राक्षस वरदान में क्या मांगने वाला है? क्या आपको है इसका ज्ञान? मुझे कैसे पता होगा, परंतु इसको इसकी तपस्या का फल मिलना ही चाहिए। प्रभु नारद, मैं नहीं तोड़ सकता इन भक्तियाँ। भगवान और भक्त के बीच में आने का न करे प्रयास। उठो भक्त, जागो। प्रभु भोलेनाथ, आप कहाँ हैं प्रभु भोलेनाथ? आप सुनाई तो दे रहे हैं, परंतु आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं यहाँ हूँ वत्स। प्रभु भोलेनाथ, प्रभु भोलेनाथ। उठो उठो वत्स, मांगो, क्या वर मांगते हो? भोलेनाथ, मुझे दीजिए एक ऐसा वरदान कि जिसके सिर पर हाथ रखूं वो वही भस्म हो जाए और तीनों लोक में भस्मासुर का नाम हो जाए। ऐसा वरदान दीजिए प्रभु। पशुपति, इसे ऐसा वरदान देने से पहले सोच लीजिए। जी प्रभु। सोच लिया। सुन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हें मुंह मांगा वरदान देता हूँ। तथास्तु। भोलेनाथ, मुझे ये भी चाहिए। दिया, नारद तुम्हें दिया। प्रभु मैं नहीं, मुझे नारद नहीं, मुझे आपकी अति सुंदर पत्नी पार्वती चाहिए। नाथ, यदि आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं रख दूंगा आपके ही सिर पर हाथ। प्रभु चलिए। भोलेनाथ, बस तुम्हारी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। जो दे रहे हो भोलेनाथ को कष्ट। भोलेनाथ के पास जाने से पहले तुम्हें मेरे मृत शरीर से गुजरना होगा। और उससे पहले मेरे। हाँ, पहले इसके ये देवता भाग रही है, किसके डर से? मेरे डर से, भस्मासुर के डर से। भस्मासुर के डर से। अच्छा, तुममें ऐसा क्या है? हमें ही बताओगे? देखना चाहोगे फिर भी देख नहीं पाओगे। मतलब? अभी समझाता हूँ। कौन है तुम सुंदरी? मेरा नाम मोहिनी। मोहिनी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या? पर कौन है आप? मैं सुर, भस्मासुर। मैं देवताओं का काल और तुम मृग नैनी, कटीली आंखें, काले घने बादलों जैसे बाल। लेकिन आप तो पार्वती को पाना चाहते थे ना? हाँ, वो भी चाहिए, पर तुम मुझसे अति अति सुंदर हो। तो आप मुझे पाना चाहते हैं? कल मुझसे नृत्य में जीत कर दिखाइए, तो समझिए मैं आपकी आपकी और सिर्फ आपकी। मेरी? परंतु मुझे नृत्य नहीं आता। मैं तो केवल युद्ध करना चाहता हूँ। आप शर्त मान लीजिए, मैं सिखवाऊंगा आपको नृत्य। हम देवताओं को देखिए कितना अच्छा नृत्य करते हैं। बढ़िया है, ठीक है। अगर किसी पर आ गया तो आ गया भस्मासुर का दिल। तो कल स्वर्ग में आके मुझसे मिल। ठीक है। अब आपको मोहिनी का सामना करना है, तो नृत्य अच्छे से आना चाहिए। आपको नृत्य सिखाएंगे हमारे पिंगू महाराज। इन्होंने स्वर्ग की सारी अप्सराओं को नृत्य सिखाया है। तो पिंगू महाराज शुरू कीजिए।
क्या है? पिंगू महाराज थोड़ा 10 रुपए में तो करने दीजिए। चलिए, अरे नहीं, आप तो बस शुरू हो जाइए। मुझे भी कुछ ऐसा ही ज्ञात होता है। अब कोई नहीं पक्का आपकी। ठीक, चलिए फिर। चलिए। तैयार है आप? एकदम निपुण। चलिए फिर प्रतियोगिता शुरुआत करते हैं। चलिए। मेरे ढोल मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल मेरी चाहते फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी होके अति उत्तम, अति उत्तम। नारायण नारायण। है ये सुंदरी? ये अप्सरा है। इससे पहले तो इन्हें नहीं देखा। अरे नारायण, आप? ये सब लीला आपकी है? ये सब लीला नारद की है। यदि भस्मासुर अपने वरदान का सदुपयोग करता तो शायद उसका अंत ऐसे नहीं होता। इसलिए कहा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। जब जब संसार में भस्मासुर जैसे राक्षस जन्म लेते हैं, तब तब उनका विनाश करने के लिए भगवान इस दुनिया में अवतरित होते हैं। प्रभु नारायण की जय। धन्यवाद। This was for sure a journey into the ancient mythologies. Aditi, have you ever looked up in the sky and wondered why is it so beautiful? To be very honest, Kaushiki, I've never. Maybe I never had the time. Exactly. We're so busy making a living that we forget to make a life. And in the process, amidst all the worries, sadness, griefs, tragedies, we forget that we can be happy too. The next song conveys that pain is inevitable and will visit everyone at some point in life. But no matter how sad we are today, joy will come, happiness will follow. The song depicts the story of Cinderella. It tells us how the prince came in poor Ella's life and changed everything. He made her happy and alive. She danced, sang and forgot all the worries. This is the magic of happiness. It drains away all the negativities from life. Here we have the French song which will create magic in this fest tonight. So ladies and gentlemen, put your hands together for the students of the French department. Oh, Menui, je dois partir. Mais dis-moi, quand est-ce que nous reverrons? Je ne sais pas, je ne sais pas. Oh, mon amour, tu me manques. Le prince, tu me manques.
la vie et la réalité. Cendrillon. Mais la réalité c'est quoi? C'est un rêve et ça sera toujours un rêve. Oh mon Dieu, je suis une malheureuse. Chérie, ma chérie. Tu me sens triste? Qu'est-ce qui te passe? Oh, ne t'inquiète pas. Nous allons danser et vous serez heureuses. Amis, allez, amis, les amis, venez. Danse, danse, et la vie chante, chante. Hey oh, hey oh. Je chante, chante, et la vie danse, danse. Hey oh, hey oh. Je ne connais pas le monde du bout de mes doigts. Je ne pense pas encore au fou et le roi. Je ne connais pas l'amour comme tu les vois. Je le sais bien, mais je danse. Je ne connais pas la vie qui s'en vient pour moi. Je ne pense pas encore à ce droit de mes bras. Je ne connais pas les jours comme tu les vois. Je le sais bien, mais je chante. Je danse, danse, et toi tu chantes, chantes. Hey oh, hey oh. Je chante, chante, et toi tu danses, danses. Hey oh, hey oh. Je danse, danse, et toi tu chantes, chantes. Hey oh, hey oh. Je chante, chante, et toi tu danses, danses. Hey oh, hey oh. Je ne connais pas le mal, le bien et tout ça. Je ne pense pas pouvoir en savoir plus que toi. Je ne connais pas l'envie qui vous coulera. Je le sais bien, mais j'avoue, je ne connais pas le peur qui dirige vos lois. Je ne pense pas vouloir marcher dans vos pas. Je ne connais pas le monde, mais j'en fais mon chez moi. Je le sais bien, mais j'avoue. Je danse, danse, et toi tu chantes, chantes. Hey oh, hey oh. Je chante, chante, et toi tu danses, danses. Hey oh, hey oh. Je danse, danse, et toi tu chantes, chantes. Hey oh, hey oh. Je chante, chante, et toi tu danses, danses. Hey oh, hey oh. Le monde est mon chez moi. 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 Et toi tu chantes, chantes. Hey oh, hey oh. Je chante, chante, et toi tu danses, danses. Hey oh, hey oh. Je danse, danse, et toi tu chantes, chantes. Hey oh, hey oh. Je chante, chante, et toi tu danses, danses. Hey oh, hey oh. Merci. The girls over here would have definitely enjoyed this performance, isn't it? Come on, audience, you deserve a huge round of applause. Do you know a country where wise men are not wise? Do you know any country where the innocent is punished and the culprits often escape punishment? A country where elections are held, but choice is mechanical? A country which is ruled by a melon. A melon? This is something I've never heard of. Today, we'll witness such a folktale that tells us that how a melon following a custom was chosen to become the king of a state. It narrates in an amusing tone the events leading to such a situation where no other but a melon
Suleiman was coronated as the king. Dear parents, let's welcome them on stage with a huge round of applause. Peace, liberty, and justice are the keys to establish an ideal and a happy state. The contemporary execution of the stately affairs has its forbearing on this old age custom. Today's democracy is just an extension of the monarchical system of rule, where the kings or queens would divine whatever he or she uttered with law. The delay in delivering justice today is equal to the process of trials and ever-changing judgments given during those days, making fun of the whole process of fair trials and judgments. And this means that with the common people, they continue to show lack of common sense. Let me tell you a story to decide us and leave a fair judgment on you. Once upon a time, there lived a just and placid queen named Reshma. Just as she was, her estate was supposed to be established only once in a millennium. Presenting before you a scene where the queen is shown addressing her courtiers. The just and placid queen, Queen Reshma, with her loving king, arrives at the court. Hail to thee, thou art the epitome of a just and a placid kingdom. Yes, sit down and give a patient hearing to your queen. As I am known to be popular for my just and placid demeanor, I feel it as a moral responsibility to look over the welfare of my subjects. You all are my subjects and interact with them daily. Kingdom owes lot to you, Her Highness. Here speaks the Queen. I proclaim that an arch has to be made, extending to the main thoroughfare. Yes. Oh, my king, so that I could view my subjects clearly and give them a spiritual lesson. That's great. Attendant, follow my order. As you said, yes. After a span of 6 months, a beautiful and a splendid arch was constructed with the help of the royal architect and his talented team. Wow! Oh, what a marvelous creation! Now it is easy for our queen to move in and around, look at people's grievances. Queen, the builder must be awarded. Of course, he should be. Attendant, we would like to celebrate its completion. I like it. Your wish is my command. Habibi,
Now, I, your queen, shall address my subject from this divine creation. Quick, hurt! Get to the medical aid! This is a disgrace! No, I do not need it. But I just want the immediate hanging of the person who made this earth. Attendant, go and get the culprit. Come! Leave me! Hey, he is Her Highness. Leave me! Leave me! Her Highness, this is the culprit. Hang him immediately! Hang him! Calm down. So, you are the one who made this earth, right? No, I am innocent. I have not done anything. It's the fault of that chief builder who takes supervisors. So, bring the chief builder to the court. I like it. Her Highness, that chief builder has already run away. But someone told me that it was not the chief builder. It was the mason's fault. So, bring the mason to the court. Come. Leave me! Her Highness, here's the mason. Her Highness, finally, we caught the culprit. Hang him immediately. Calm down. Who is the queen? I will decide it. So, you are the mason. Yes. Hang him right now. Leave me. Her Highness, you don't know. The architect is to be blamed who did not supervise. Not me. Summon the architect. Come. No, leave me. This is the architect, Her Highness. So, you are the architect. What do you have to say? Her Highness, we have forgotten that you had made certain changes to the plans when I showed it to you. It is not at all my fault. Damn it! Neither the workman, nor the chief builder, neither the mason, nor the architect. Then who is to be blamed? It's beyond my understanding. I think you need some counseling. Yes. Attendant, go and get the wisest man of the kingdom. I like it. The wisest man was found and carried to the royal court. Hail to thee! The culprit must be punished. So I think it was the arch that banged the queen's head, right? So I think that the arch should be hanged. But
How can we hang the arch? Yes. Which does the royal head? Yes. Isn't it an insult to the royal crown? True, true. But someone is to be blamed. It can be you. It can be you. And it even can be you. Means it can be you also? No, I'm the wise man, right? So, prepare a noose, and whoever fits in must be hanged to prove that the queen is just and placid. Yes, yes, she's just and placid. Go and get the news. And wise man, please be a part of the Bless you both, bless you both. Come! Come! Leave me! Leave me! Come! Huh? You're too short! Get lost! Come! Come! Hello. Your neck is too thin! You also get lost! We want hanging! We want Hanging! Hanging! You want hanging? Get lost! I think, my friend, I should try you. Come, come! If I will be hanged, so who got this wonderful palace? I'll guard this wonderful palace. Why don't you try the news? Me? How can I hang myself? So let's try her. Come! You can't hang me Why? because I am running away. Everybody in the kingdom was tried, but nobody fitted the nose. Did you get anyone? No, my lord. Oh dear, why don't you try yourself? Yes, king, can I try? I'm the king. We can do anything. Come! This is a kingdom of fools. I am running away. King, leave him, let him go. As you know, I am just as placid. Now, I shall try the news. It fits it! It fits it! Hurry, help us! Farewell, my courtiers. Farewell to all. Long live the queen! Long live the queen! Long live the queen! Thank goodness, we found someone. And if we had not, then this unruly town might have turned against the crown. Now who will be our next ruler? No worries, no worries, no worries. Foolish people, the wise man will tell you. According to the royal custom, the first person to pass by the city gates will tell us about our next ruler. So, attendant, follow my order. As you say, sir. Yo, melon. I like my melon. I like it. Sir, please, this way. Actually, you are required at the royal court. So, please, this way. Royal court? Beautiful? But the most beautiful? Me. The most beautiful? My melon. This man passed the city gate just now. This man? Okay. So, the kingdom has been deprived of a ruler. You only tell us who will be our next ruler. Yes, you only. Melon? Yo, melon. Wait. But
Thank you. Come on, audience, please give them a huge round of applause. I would now request our Honorable Director, Mr. Sharma, to kindly come forward and say a few words. सबको नमस्कार। आप सब बड़ी शिद्दत से अपने बच्चों के कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमारे चीफ गेस्ट जा चुके हैं किसी अर्जेंट उसमें, तो बाकी सबका मैं तिवारी जी का, मिसेस स्वरूप और हमारे हम लोगों को ब्लेस करने के लिए मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं एक्चुअली हर बार आपसे, इस बार खैर हम 3 महीना पहले ही मिल गए हैं और हर साल हम दिसंबर में ही मिला करेंगे। और तो बहुत कुछ कहने का मन करता है आपसे, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि मैं अपना सारा समय एक ऐसी शख्सियत को दे दूँ जिसका इंतजार मैं इस स्कूल में बहुत टाइम से कर रहा था। मैं बहुत शॉर्ट में बात करूँगा। हमारे बीच में हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर अतुल जैन जी हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि आप जरा 1 मिनट खड़े हो जाएं अपने ही स्थान पर। ये इसलिए ज़रूरी है कि ये स्कूल जो जिस पद्धति पे चला शुरू हुआ, जापानी टेक्नोलॉजी में, जिसको कह सकता हूँ एक लाइन में, एक शब्द में जिसे कहा जा सकता है, ये सब आप ही की देन है। और अतुल जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, और इन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया था जापान जाने के लिए। और सब जापानी प्रेम जितना इस स्कूल में है वो आप ही की वजह से। और लगातार हमें आपसे फोन पे ही, बहुत कम आते हैं भाई साहब, लेकिन फोन पे बहुत समर्थन मिलता है। अब मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा था वो विश्व प्रसिद्ध हो चुके हैं, हमारे भाई प्रवीण शुक्ल हमारे बीच में है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं चाहूँगा कि मेरी तरफ से और पूरे मैनेजमेंट की तरफ से आज प्रवीण भाई आपको संबोधित करें। मैं समय कम लूँगा, इसीलिए प्रवीण भाई प्लीज कृपया आए। प्रवीण जी इस समय पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। एक बहुत ही कवि, हर प्रकार के कवि हैं, हास्य कवि भी हैं, साहित्य कवि भी हैं, और क्या क्या सभी। और हमारे पड़ोस में मुखर्जी स्कूल है, वहाँ पर अध्यापन कार्य भी करते हैं और रहते भी हमारे घर के पास है, इसलिए हमारे बहुत निकट हैं, दिल से भी निकट है, फिजिकली भी निकट है। प्लीज। मित्रों नमस्कार। मैं सबसे पहले मेरे बड़े भाई श्री अरुण शर्मा जी, जो बहुत ही शब्द में क्या कहूं कि उन जैसा मनुष्य मिलना बहुत मुश्किल है। एक ही पंक्ति में यदि मैं कहूं तो मुझे लगता है किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। मैं दुनिया के बहुत देशों में गया, अमेरिका 5 बार गया, 42 शहरों में कविताएं सुनाकर आया, राष्ट्रपति भवन में 3 बार सम्मानित हुआ। अभी प्रणव मुखर्जी जी को मैंने हाल ही में अपनी पुस्तक भेंट की। पूरी दुनिया के अनेक देशों में घूमा, हिंदुस्तान के अनेक बड़े बड़े शिक्षण संस्थान देखे। लेकिन मैं मित्रों ये इसलिए नहीं बता रहा कि आप मेरे बारे में जाने, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जहां जापान की तकनीक की बात हो, जहां नई टेक्नोलॉजी की बात हो, जहां नए मिशन की बात हो, जहां नूतन पद्धतियों की बात हो, लेकिन उन सारी बातचीतों के बीच यदि हम कहीं जड़ से जुड़कर चलें, कहीं भारत से जुड़कर चलें, कहीं भारतीयता से जुड़कर चलें, कहीं संस्कार से जुड़कर चलें, कहीं अपनेपन से जुड़कर चलें, तो उसके लिए एक अरुण शर्मा जी की जरूरत होती है। उनके बिना मुझे लगता है कि ये सब कुछ संभव नहीं है। उनसे आप जब भी मिलिएगा, बच्चों के पेरेंट्स भी मिलते होंगे, ऐसे बड़े पद पर वो हैं, मित्र भी मिलते होंगे, टीचर भी मिलते होंगे, परेशानियों के साथ भी मिलते होंगे, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतों में मिलते होंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब उनसे मिलते होंगे तो वो दिक्कत में होते होंगे, लेकिन जब उनसे मिलने के बाद वापस जाते होंगे तो एक खुशी के साथ जाते होंगे, एक मुस्कुराहट के साथ जाते होंगे। और ये मुस्कुराहट कहीं ना कहीं
इस अर्वाचेया जो हमारा ये विद्यालय है, इंटरनेशनल स्कूल, इसकी जड़ों में घुली रहे, हम सब बहुत आगे बढ़ते रहे। मैं बच्चों को 4 पंक्तियां जरूर कहूंगा। जैसा हमारे सर ने भी कहा कि हताश होने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बड़ी मैगजीन में पढ़ा कि दुनिया की जो 12 बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो इस समय चेयरमैन हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनमें शायद कोई भी किसी यूनिवर्सिटी का टॉपर नहीं है। दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का आदमी हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया की व्यवस्था को वो संभालते हैं, क्योंकि एक मिशन उनके भीतर है और एक कमिटमेंट उनके भीतर है। एक चीज दोस्तों समझ लीजिएगा कि जीवन में जिसने एक कमिटमेंट अपने भीतर पैदा कर लिया, एक इच्छा शक्ति पैदा कर ली, एक विल पावर पैदा कर ली, उस विल पावर में से ही कोई लाल बहादुर शास्त्री निकलता है, उसी विल पावर में से कोई एपीजे अब्दुल कलाम निकलता है, उसी विल पावर से कोई नरेंद्र मोदी निकलता है, और उसी विल पावर से कोई अरुण शर्मा निकलते हैं, कोई प्रवीण शुक्ल निकलते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनको देखकर लगता है कि हमें जीवन में कुछ करके दिखाना है। मैंने एक जगह पढ़ा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब गांधी जी की मार्कशीट बांटते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। और कहते थे कि बापू की राइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी और मार्क्स भी शायद उतने बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उनके पास एक विजन था, एक दृष्टि थी, एक जीवन में आगे बढ़ने का एक जज्बा था। वो हम सब बच्चे अपने भीतर पैदा करें और एक संकल्प लें कि जो भी करेंगे उसे मन के साथ करेंगे। परीक्षा सामने होगी तो उसमें जो करना है सर्वोच्च करने की कोशिश करेंगे, और जहां तक पहुंच जाएंगे अगली बार उससे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जहां अगली बार पहुंच जाएंगे उससे फिर और आगे जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने कहीं लिखा था कि जहां तलक भी खुला आसमान बाकी है, जहां तलक भी खुला आसमान बाकी है, मुझे पता है कि मेरी उड़ान बाकी है। तालियां बजाने का मन करे तो बजा सकते हैं, कभी को अच्छा लगता है ऐसा होने से। जहां तलक भी खुला आसमान बाकी है, मुझे पता है कि मेरी उड़ान बाकी है। अभी तो मैंने अपने पंख फैलाए जरा, नापने के लिए पूरा जहान बाकी है। आप सबकी उड़ान पूरी दुनिया में फैले, अर्वाचीन इंटरनेशनल स्कूल की खुशबू लेकर आप जाएं, और जहां भी जाएं हमें ऐसा लगे कि हमने अपनी रोशनी सब जगह फैलाई है। हमारे इस दौर के बहुत बड़े शायर हैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब। उनका एक शेर है कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। तो आप जहां भी रहें ऐसी रोशनी लुटाएं कि आपका घर, आपका परिवार, आपके पेरेंट्स, आपके गुरु, आपके अभिभावक, आपका स्कूल, आपके सारे रिलेटिव और हम सब ये गर्व महसूस करें कि हमारे बच्चे दुनिया में वो सब कर रहे हैं जो सपना हमारी आंखों ने देखा। ये बच्चे नहीं हैं, ये हमारी आंखों के वो सपने हैं जो आकाश में पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं देख रहा हूँ कि मैं करना कुछ चाहता हूँ, हो कुछ जाता है। ये सारा श्रेय मुझे मिले जा रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि इस पूरे अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय किसको है? वो अभिभावकों को है, आप पेरेंट्स को है। और आप में से बहुत सारे वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने सबसे शुरू में हम पर विश्वास करके हमें अपने बच्चे दिए थे जब हम कुछ नहीं कर पाए थे। तो सबसे बड़ा तो धन्यवाद आप लोगों का है, साधुवाद आप लोगों को है जो आपने हम पर विश्वास किया। तो एक बार अपने लिए भी बहुत जोर से तालियां बजाएं। और इसके बाद जो क्रम आता है उस क्रम में हमारे प्रिंसिपल और उनकी सेना, पूरी टीचर्स, उनको श्रेय जाता है। और सबसे ज्यादा श्रेय जो जाता है वो तो आपके बच्चों को जाता है कि उन्होंने हमारी सुन ली और हमारी मान ली। मैं तो बिना बात बीच में हूं कहीं, मेरा तो एक ही जिम्मेदारी है कि भाई आप सबका मैं कोऑर्डिनेशन बनाए रखूं। सो पता नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा, लेकिन हाँ मुझे पता है वो अच्छा रहा है सब कुछ, लेकिन मैं इसमें कहीं बहुत बड़ा रोल नहीं निभा रहा हूँ।
और आज के इस कार्यक्रम में मैं अपना स्वार्थ बता देता हूं आपको। मैं बहुत स्वार्थी आदमी हूं। जेके शर्मा जी हमारे चीफ गेस्ट हैं, अब तो जा चुके हैं, लेकिन मैंने उनको सिर्फ इसलिए बुलाया और इस तैयारी के साथ बुलाया कि दोबारा वो जरूर आएंगे। हमारी 12वीं और 11वीं कक्षा के बच्चों को एक इंस्पिरेशनल टॉक देने के लिए जब भी इनका विदाई समारोह होगा या उससे आगे पीछे, मैंने इस कमिटमेंट पे उनको बुलाया था कि आप एक बार नहीं 2 बार आएंगे। तो वो दोबारा जब आएंगे तो सिर्फ बच्चों से मिलेंगे। और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री राजेंद्र तिवारी जी, मैं अपना स्वार्थ फिर बता रहा हूं कि मैंने इनको सिर्फ इसलिए इनवाइट किया है कि ये बाद में भी हमें पार्लियामेंट, मुख्य पार्लियामेंट बनती है क्लास स्कूलों में, हम भी शायद इस साल नहीं तो अगले साल इसमें कदम रखेंगे। तो आपसे हम लोग बहुत गाइडेंस लेंगे और इसीलिए आपको हमने एक तरह से बुक कर लिया है सर, प्लीज। तो ये इस साल से शुरू हो रहा है, प्रिंसिपल मैम कह रहे हैं। तो मैं 1-2 नाम आपके बीच में जरूर रखना चाहूंगा जिन्होंने आज यहाँ आकर मुझे आशीर्वाद दिया है। वो खास तौर से हमारे चाचा जी हैं श्री जेपी शर्मा जी। 1 मिनट चाचा जी खड़े हो जाएं। चाचा जी हमारे बाबूजी के साथ पढ़ाया करते थे, इसलिए हमारे हमेशा हमें शिक्षक हमारे हैं और मार्गदर्शक हैं और हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं। एक हमारे गुप्ता जी हैं बाल भारती स्कूल से। गुप्ता जी प्लीज 1 मिनट बस। बाल भारती स्कूल में प्रिंसिपल रहे आप 18 साल और चिन्मया मिशन से जुड़े हुए हैं। प्लीज बैठिए। आप ये हमारे मार्गदर्शक हैं जो हमें समय समय पे बहुत गाइडेंस देते हैं। हमारे साथ में हैं राजेश्वर वत्स जी, सीबीएसई से हैं, बहुत साल सीबीएसई की सेवा की, अभी भी कर रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं उसके बावजूद भी कर रहे हैं। श्याम सुंदर जी हैं हमारे साथ में, जो मूसा जी एक बार खड़े हो जाओ जी, आप हमारे मैनेजिंग कमेटी में भी हैं और हमारे सदैव मार्गदर्शक। एक नरेश कालरा जी हमारे बीच में जो हमारे को पूरी एश्योरेंस देते हैं, जो हमारा इंश्योरेंस करते हैं। हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने बाबूजी के हमारे स्टूडेंट रहे। नरेश जी 1 मिनट के लिए। ये वो लोग हैं और बहुत सारे अंदर हैं बिल्डिंग में जो यहाँ नहीं है। मैं किस किस का नाम लूँ, बहुत बड़ी टीम है जो मुझे इंस्पायर करती है और मुझे मार्गदर्शन देती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया। मैं चाहूंगा मिसेस स्वरूप आए 1 सेकंड के लिए। मैम आप ये नाम अनाउंस कर दीजिए हमारे स्कॉलरशिप के, प्लीज प्लीज मैम, ऑनर फॉर अस। It's a great privilege to announce the Sri Srinivas Sharma Scholarship for the session 2016-17. Pancham Gupta from 11B. Congratulations, Pancham. Please give him a huge round of applause. From your hearts. Thank you, parents. The Srimati Jain Devi Scholarship, session 2016-17, goes to Shruti Rao, line 2. Congratulations and well done, Shruti. Well done. From your hearts, please give her a huge round of applause. Thank you, Mr. Sharma. थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक कार्यक्रम शायद और है और उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. This night has been so amazing, so full of life. But you know what, audience? It isn't over. Yes, it isn't. Ladies and gentlemen, to conclude this eventful night, here we have the finale dance. With all the enthusiasm, let's welcome them on stage.
request our respected principal, Mrs. Peter, to kindly come forward and say a few words. Our respected guest of honor, Mr. Rajendra Tiwari, all our distinguished guests, parents, teachers, and my beloved students. A very good evening to all of you. We know that success is not a destination, but it's a journey. Believing in the philosophy that success belongs to the one who perseveres till the end. While thanking God the Almighty for His innumerable blessings upon each one of us, day in and day out, I'm here to spell words of thanks to all those people who have contributed to make this evening's cultural extravaganza a sweet memory to carry home. First and foremost, on behalf of the Arvachin family, though our chief guest is not here, I would like to express my sincere gratitude and appreciation to him for inspiring all of us with his words of wisdom. Our guest of honor, Rajendra Tiwari, you have really conveyed a beautiful message to our parents, teachers, and students, and we were really inspired by you. Thank you so much. My gratitude is due to all our dignitaries, the heads of the various institutions, for being here with us, spending your valuable time, and for your silent support and unspoken words of encouragement. Thank you so much. Now, to add on to what Praveenji has said here, I would like to say something on the director of our school, Mr. Arun Sharma. It is really true. It's very difficult to find persons like Arunji. A person who supports everyone at all times, be it teachers, students, or parents. He has a good word for everyone at all times. You go to him with the worst news, but you don't come back from him discouraged. And that is what is our director. Thank you, sir, for your support at all times. You are a source of inspiration to the students, to the teachers, and to all of us. Thank you so much. Now, parents, you know, a program like this cannot be planned overnight. The wheels start rolling weeks ago. With a deep sense of appreciation, I recall all the efforts put in by our teachers. My dear teachers, I can tell you that all your days of hard work has borne fruit today. Looking at the performance of the students, you can see that. And I'm privileged to tell you that we are backed by a team of highly motivated and committed teachers who knows their job well. If you look at the decoration of today, right from the entrance, the passage, the stage, at the entrance of the building, all these decorations are done by our arts department and the students trained by them. Parents, be it art, decoration, dance, music, teaching, activities, whatever it may be, I must tell you that our teachers are the best. Please put your hands together. Give them a huge round of applause. Our teachers deserve that. My heartiest congratulations to my beloved students. Students, you have put up a great show this evening and you have made all of us proud
I thank each of you for your performance, which was the best today. Thank you, children. I would like to thank the stage setters, the light and sound operators, the media persons, and all those who have contributed to the success of this program. I would like to especially mention the support of our non-teaching staff. When we tell about our Vachin family, this is what our family makes a difference here. Everyone in the campus was involved in working for this program. The non-teaching staff, they had to leave all their comfort zones, and they have also done a good job. Thank you, staff. Finally, I would like to thank everyone present here, parents, the guests, teachers, friends, well-wishers, and all our collaborators. Not only for your support today, but throughout the year. Thank you for contributing towards the building of this great temple of learning. May God continue to bless all of us. I would like to request our director to honor our guest of honor, Rajendra Tiwari. Shri J.P. Sharma ji. Shri G. Gupta ji. Shri Satyendra Kumar ji. Thank you, sir. मैं बीच में आ गया हूँ। मैं दो नाम और लूँगा। मैं उनको भी बुलाना चाहूँगा, श्री अतुल जैन जी और प्रवीण शुक्ल जी, प्लीज। बहुत अच्छा बोलिए आप मैडम, नाइस, थैंक यू। Thank you, sir. Once again, thank you, one and all. Dear parents, tomorrow will be a holiday for all. It's been a decade since we've been part of this school. Here, we've always learned that when we clap, we always clap from our hearts. So now, you being the members of this Arvachan family, we expect the same from you. Let's give them, all the participants, a really very huge round of applause. Let's all stand for the national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, घर घर मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे
Thank you.